الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہمارا یہ دوسرا درس ہے ایمانیات کے حوالے سے۔ جو پچھلے ہمارے 3 دروس ہوئے اس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ، اور آپ نے دیکھا کہ وہ کتنی عظیم سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر 7 ایسی آیات نازل فرمائی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور خود ایک قرآن عظیم ہے۔ یعنی کہ ایک تو قرآن ہے، اور وہ قرآن عظیم جو بار بار ایک پڑھے جانے والی بڑی عظیم آیات ہے۔ اس کے حوالے سے اب ایمانیات کے حوالے سے اب یہ دوسرا بیان ہے ہمارا، اور اس میں ہم دیکھیں گے جو آج کا ہمارا بیان ہے یہ سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے اس کی ابتدائی 6 آیات۔ اب اس کا ایک ترجمہ جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ پھر جو آگے میں بیان کروں گا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب ہمارے، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، وہ ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، بس ہم ایمان لے آئے۔ سو اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، اور ہمیں نیکوکار بندوں کے ساتھ وفات دیجیو۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کی وساطت سے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ بس ان کی دعا قبول فرمائی ان کے رب نے کہ میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے جنگ کی اور جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، میں ان کی برائیوں کو لازماً ان سے دور کر دوں گا۔
और उनको लाजमन दाखिल करूंगा उन बागात में जिनके दामन में नदियां बहती हैं। ये बदला होगा अल्लाह के खास खजाना फजल से, और वाकया यह है कि अच्छा बदला तो अल्लाह ही के पास है। ये आपने देखा कि बड़ी इसमें अजीम दुआएं आई हैं। ये जो दो मकाम है ना, सूरतुल बकरा की आखिरी आयत और सूरह आल इमरान की आखिरी जो ये आयत हैं, ये बड़ी अजीम आयतों पे मबनी है और बड़ी अजीम इसके अंदर दुआएं आई हैं। अब इसके हवाले से चंद तमहीदी बातें नोट कर लें। पहली बात तो ये कि जो सूरतों के शुरू में जो आयत आती हैं और जो आखिर में आयत आती हैं, आप ज़रा नोट करें तो आपको महसूस होगा वो बड़ी अजीम होती। उसमें अल्लाह की हम्द के पहलू होंगे या कोई तज़कीर के पहलू होंगे, बड़े स्ट्राइकिंग। उसकी वजह यह है कुरान मजीद एक खुतबे की शक्ल में जो है अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया। खुतबात जो होते हैं इसके अंदर शुरू के जो अल्फाज होते हैं और आखिरी जब जो खतीब होता है वो अपनी बात को जब ख़त्म करने लगता है तो बड़ी मुदल्लल और बड़ी जो एक सम अप करने वाली बात होती है उसके अंदर आती है। दूसरे इसकी शान नज़ूल के हवाले से बड़ी खूबसूरत एक रिवायत मिलती है। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाइश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपको बड़ा पसंद हो, जो आपके यानी सारी बातें आपको पसंद हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात आपको पसंद है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपकी तो सारी बातें ही बड़ी दिलजेब और दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत थी, अलबत्ता तुमने फरमाइश की है तो एक वाक़या मैं सुनाती। आपने फरमाया एक दफ़ा मेरी बारी थी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख़ैमे में तशरीफ़ लाए, तो आपने फरमाया कि आयशा, आज मेरा अपने रब की इबादत करने को और उसका बड़ा दिल चाह रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये आपके वक्त में से कुछ अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे आपकी जो सोहबत है, जो आपकी कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। अलबत्ता वो बात उससे भी ज़्यादा पसंद है जो आपको पसंद है। बड़ी खूबसूरत बात है कि जो आपको पसंद है वो उससे भी ज़्यादा पसंद है। तो आप फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, क़याम में जब आप खड़े हुए हैं तो आप रोना शुरू हो गया, आपकी दाढ़ी मुबारक जो है सारी तर हो गई। उसके बाद आपने क़याम किया, वही कैफियत बरकरार रही। फिर आप सजदे में, और आपने बड़ा लंबा सजदा किया, उसमें भी आप रोते रहे, और ये कैफियत फिर आप लेट गए तो उसमें भी ये कैफियत आपकी जारी रही, यहाँ तक कि जब सुबह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मामूल था कि वो आपको उठाने आते थे, तो आपको देखा कि आपका वही आहोजारी की कैफियत बरकरार है। तो उन्होंने पूछा, हुजूर क्या मामला हुआ? आपके तो अल्लाह ताला ने सारे गुनाह भी बख्श दिए, तो क्या ऐसा मामला है? तो आपने फिर ये आयत तिलावत फरमाई, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, आखिरी आयत तक। और आपने फरमाया, देखो मेरे रब ने मेरे ऊपर क्या नाजिल कर दी। यानी इन सूरतों का हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दिल के ऊपर बड़ा इसका गहरा असर था। एक और रिवायत मिलती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी आपकी आँख खुलती रात को तो आपकी ज़बान पर यह आयत जारी हो जाती थी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इन आयत की क्या अहमियत है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है तरकीब ईमान। तरकीब हम पढ़ा करते थे मैथ के अंदर कि एक फार्मूला जो बनता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में पढ़ते थे किसी चीज़ के बनाने की तरकीब। ईमान कैसे बनता है?
تو یہ اس کا موضوع ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، خاص طور پہ ہم جو پاکستانی ہیں اور جو مسلمان ہیں اور پیدائشی طور پہ مسلمان، تو ان کے حوالے سے اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ایمان کے بارے میں چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ میں نے پچھلے دروس میں بھی شاید کوئی آیا ہو۔ عبد الباسط، ایمان؟ ہاں جی، کسی اللہ کے احکامات پہ ایمان لانا دل سے اور دماغ سے اور زبان سے۔ ہاں جی، رانا صاحب۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ ہاں، یہ بھی ایک معنی، اس کو زیادہ آپ کہہ لیں گے شریعت۔ ویسے اس کا جو مفہوم ہے نا، اگر آپ دیکھیں اصطلاحی، وہ بنتا ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان لانا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، جو انبیاء لے کے آئے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان۔ یعنی یہ جو غیب کے امور ہیں، اصل تو وہ ہے نا، یہاں دنیا میں تو سامنے چیزیں وہ تو سارے مانتے ہیں۔ ایمان تو ہے اصل میں جب اس میں غیب شامل ہو جائے، جنت اور جہنم شامل ہو جائے، ایک بڑے دن کی جو مسئولیت کی ہے جو بیان ہے وہ شامل ہو جائے، اسی طرح جو ہے اللہ پہ ایمان، کیونکہ اللہ خود غیب میں ہے، وہ بھی ایمان کے حصے میں آ جائے۔ پھر انبیاء جو دعویٰ کرتے ہیں ان پہ ایمان بھی، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں جی فرشتہ میرے اوپر کتاب لے کے آئے، تو انبیاء کے اوپر ایمان بھی یہ ایمان میں شامل ہو جاتا۔ اور اس کی شارٹیسٹ ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس ایمان کے دو لیول ہیں، ایک ہے قانونی اور فقہی ایمان۔ کوئی شخص تھا، ہندو تھا، مجوسی تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ نماز بھی نہ پڑھے یا جو بنیادی جو عبادات ہیں ان کے اوپر عمل بھی نہ کرے، البتہ یہ ہے کہ وہ تو مسلمان ہو گیا زبانی طور پہ، فقہی طور پہ وہ مسلمان ہے، اور ایک جو اسلامی ریاست ہے اس کا وہ شہری بن گیا۔ ایک ہے حقیقی ایمان، کہ ایمان دل کے اندر جا بجھی ہو جائے اور اس کا عمل کا حصہ بن جائے۔ اصل میں ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، جس چیز پہ ہم یقین رکھتے ہیں، جیسے ایک ہم عام مثال دیتے ہیں، مجھے پتا ہے میں وہ جا کے اٹینڈنس لگاؤں گا تو مجھے سیلری ملے گی، اتنا ہی یقین یہ ہو جائے اللہ کے اوپر اور محاسبہ آخرت کے اوپر اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ ایمان جو ہے کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی۔ لیکن جو یہ ایمان ہے قانونی، جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا، وہ تو پھر کانسٹنٹ ہے، وہ فکس ہے۔ تو یہ قانونی ایمان ہو گیا۔ اور حقیقی ایمان، جو حقیقی ایمان ہے اس کی بحث یہاں پہ ہے کہ جو ایمان حاصل کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب مسلمان یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ تو یہ قرآن کم بھی ہوتا ہے، یہ ایمان جو ہے کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اکتسابی اور شعوری ایمان کی بات ہوگی جو کہ حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ آیات ہماری کس طرح رہنمائی کرتی ہیں اس طرف۔ اچھا جی، اولو الالباب کے ذہنی اور شعوری سفر کے ارتقائی مراحل۔ اس میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ باشعور لوگوں کے لیے، ہوش مند لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ یہ جو اولو الالباب کا لفظ آتا ہے، یہ الباب جمع ہے لب کی، ہمارے اردو میں بولتے ہیں لب لباب، کسی چیز کا اصل جوہر، کسی چیز کا اصل مقصد۔ تو یہ ہے کہ انسان کا جو اصل جوہر ہے، کہیں جی انسان کو کہتے ہیں حیوان عاقل، کہ اس کے پاس اگر سب سے بڑی صلاحیت دیکھی جائے گی تو وہ عقل کی ہے، جو اسے جانوروں سے ممتاز کر دیتی۔ پھر اس عقل کا سفر کیا ہے؟
ये अकल जो मैंने पहले बताया था कि इंसान के अंदर दो फैकल्टीज ऐसी हैं जिससे वो अल्लाह को पहचान सकता है। हकीम लुकमान का जो जिक्र आया था, उन्होंने अल्लाह को कैसे पहचाना, हालांकि वो तो किसी नबी के पैरोकार भी नहीं। एक तो इंसान की फितरत है, जो उसका अंदर है, वो उसे बताता है, जो उसके अंदर वो अल्लाह ने जो अपनी रूह फूंकी हुई है, जिसे हम ज़मीर भी कहते हैं, वो उसे बता रहा होता है कि कोई है, मेरा खालिक, मेरा मालिक। और एक उसकी अकल जो मुशाहिदा करती है आसमानों का और ज़मीन, और इसके अंदर जो बेशुमार जो रंगारंगी देखती है, और तख्लीकी, और ऐसी तख्लीक के जो ना ख़त्म होने वाली। अभी आप अक्सर अभी अखबार पढ़ें तो पता लगेगा फलानी स्पीशीज फिर आ गई, कोई नई जो है वो उसका साइंसदानों ने दरियाफ्त कर ली, फलानी चीज़ फिर दरियाफ्त कर ली, एक नई तरह का जो है वायरस दरियाफ्त हो गया। यानी कि अभी तक इंसान ने और अल्लाह की मखलूक जो है उसका थोड़ा सा हिस्से का भी ऑब्जर्वेशन की है। तो ये जो इनकी मज़ाहिर फितरत हैं, इनके ऊपर जब इंसान इन्हें देखता है, सोचता है, जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, खोल आँख फलक देख, फिजा देख, ज़मीं देख, नहीं नहीं, सूरज मशरिक से निकल उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। तो इसे देखेंगे तो क्या होगा कि आपको एक खालिक नज़र आएगा। इस तो अल्लाह की मार्फत हासिल होती है एक अपनी फितरत के ऊपर गौर व फिक्र करने से। इसे कहते हैं आयात अनफुसी, कि अपने अंदर से जो अलामात इंसान के बरामद हो रही हैं। और एक यह है कि बाहर जो इंसान देखता है, उन दोनों से अल्लाह की मार्फत हासिल होती है। अच्छा, यहाँ इस आयत के बाद जो है आएगा कि ये लोग जो हैं फिर खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए अल्लाह को याद करते रहते हैं। यानी कि ये लोग अल्लाह से जो ताल्लुक़ बना लेते हैं, क्योंकि जो गौर व फिक्र है, इस तक बंदा जब पहुंच गया, एक रस्सी उसके हाथ में आ गई, फिर उस रस्सी को थाम के रखना है। ये जो जिक्र है, ये नमाज भी जिक्र है, ये कुरान भी जिक्र है, और दूसरे अज़कार मसनूना भी है। इससे क्या है कि आपका ताल्लुक़ जुड़ा रहता है। तो वो लोग जब इस रस्सी को पकड़ लेते हैं तो फिर इसे कस के थाम लेते हैं। फिर एक नबी की दावत इन्हें सुनाई देती है, और फिर ये नबी की दावत पे लब्बैक कहते हैं। और फिर आखिरी आयत के अंदर सूरह 195 में बताया कि ये लोग फिर जिहाद भी करते हैं, मुश्किलात भी बर्दाश्त करते हैं अल्लाह की राह में। इनकी सीरत और किरदार बड़ी ठोस होती। उलुल अलबाब का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और हम करेंगे। ये जो कुरान मजीद में हम कहते हैं आयत, आयत का क्या मानी है? अरबी में आयत का मतलब है निशानी। ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ हम वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बनता आयत का, क्योंकि वो तौरात और इंजील में वर्ड्स यूज़ होता है तो हम वर्ड्स कर लेते हैं। लेकिन इसका सही तरमानी है कि इसे आया कहा जाए, और आयत का मफहूम होगा निशानी। इसे ऐसे समझे कि एक शख्स है, आपका कोई पुराना दोस्त था, उसने आपको कोई निशानी दी, कोई रुमाल दिया, कोई कलम दी। अब वो भूल गया, कोई बचपन का आपका क्लास फेलो था, एक कॉलेज का। कभी आप ट्रंक जो है अपना खोलते हैं, पुरानी चीज़ों में देख रहे होते हैं, वो कलम मिल जाता है, तो आपकी जहन में वो सारी पुरानी यादें, उस दोस्त के साथ जो ताल्लुक़ होता है, वो सारा आपको असर नो जो है ताज़ा हो जाता है। इसी तरह ये आयत अल्लाह की निशानी है, ताकि बंदे को अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाए। वैसे तो उसे बुनियादी जो हिदायत है वो अपनी फितरत से मिल रही है कि एक खालिक है, एक मालिक है, एक मेरा रब है। जब मैं उससे ताल्लुक़ जोड़ता हूँ तो मेरे अंदर एक तस्कीन का पहलू बढ़ता है। जब मैं उससे ताल्लुक़ तोड़ता हूँ तो मेरे अंदर मेरा जो ये है, मुझे ये खटखटाता है। और जो है वो देख रहा है बाहर हर तरफ अल्लाह की निशानियाँ बिखरी हुई, लेकिन यह है कि उसके ऊपर मज़ीद जो है अंबिया किताब लेके आए, जो उसको मज़ीद उसको स्ट्रेंथन कर देती है, उसके इल्म को, जो उसके जो फितरत और अकल जिसकी तरफ रहनुमाई कर रहे होते हैं। कुरान मजीद का तर्ज इस्तदलाल क्या है? आपने सुना होगा ये सुकरात, बुकरात, अरस्तु,
उनके बारे में एक बड़ा मज़ेदार बात मैं कर रहा था कि वो मंतक ही उनकी दलाइल होती थी। मसलन उनकी एक बहुत बड़ा अरसे तक ये चलता रहा कि मर्द के तो 32 दांत होते हैं, औरत के मुंह में कितने दांत होते हैं, और कभी उन्होंने मुंह को खोल के नहीं देखा कि गिन लेते। बस उस पे उनकी इस्तदलाल चल रहा है, कोई कह रहा है जी 35 होते हैं, कोई 36, कोई 38, कोई 42, और उसमें दलाइल दे रहे हैं, बाल की खाल उतार रहे हैं। तो अहले मंतक का जो रास्ता है वो कुरान अख्तियार नहीं करता मार्फत के लिए अल्लाह की। वो मैंने एक बताया, एक हदीस भी है। एक तो मंतक का रास्ता यह है कि लोग कहें जी सारी चीज़ों को बनाया किसने, ये दुनिया किसने बनाई, तो कुदरती होगा भी, एक रब होगा उसने बनाई होगी। लेकिन मंतक में एक और बात होगी, रब को किसने बनाया। अच्छा, रब को एक और रब ने बनाया, उस रब को किसने बनाया, तो ये ना खत्म होने वाली बात है। क्योंकि अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो बेमिसल है। अगर अल्लाह को किसी ने बनाया होता फिर तो हमारी तरह मखलूक होता। उसको किसी ने नहीं बनाया तो वो रब है। हाँ, इसकी दलील जो एक आम तो सीधी सी बात जो समझ आती, कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला के बारे में आता है कि अल्लाह के मिसाल किसी भी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह जैसी नहीं, अल्लाह की मिसाल किसी भी कोई शय। तो जाहिर है वो रब है, उसकी वो वाहिद है, तन्हा है, तो उस जैसी मिसाल की चीज़ कैसे हो सकती। तो कुरान का जो तर्ज इस्तदलाल है वो बदीहात फितरत पर है। बदीहात फितरत क्या होती हैं? सच बोलना सबको अच्छा लगता है, झूठ बोलने से हर किसी को कराहत है, मेहमान नवाजी सबको अच्छी लगती है, दूसरे की इज्जत की जाए, रिस्पेक्ट की जाए, अच्छा लगता है। तो ये जो सारी चीज़ें जो कॉमन है तमाम इंसानों के अंदर, इसके ऊपर कुरान जो है अपना इस्तदलाल करता है, और अहले मंतक का रास्ता अख्तियार नहीं करता। अच्छा जी, ये तो हो गया, हमने एक रब को पहचान लिया, हमारे अंदर से भी आवाज़ आई, अकल ने भी कहा कि कोई है इसकी तख्लीक करने वाला। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये एक ही है? ये ऐसे पता लगेगा कि जो ये हम आहंगी है हर चीज़ के अंदर। कभी आप देखें ना कि जो हमारी ज़रूरियात हैं वो कितने लंबे तरीके से उसमें काज एंड इफेक्ट, पता नहीं क्या क्या होता है, चीज़ें फिर एक चीज़ आके बनती है जो इंसान के तस्कीन का उसकी रोज़ी के ही मामला हैं। बहुत सारी फोर्सेस और नेचर इकट्ठी होके, मसलन वाटर साइकिल ही देख लें, जो पानी हम तक पहुंचता है। मैंने अपना मुशाहिदा बताया, मैं जब कराची में गया था तो मैंने देखा कराची में हर वक्त ही आपको ना बादल भागते हुए नजर आएंगे। वहाँ बारिश कम ही होती है लेकिन बादल वहाँ से जा रहे हैं क्योंकि समंदर है। और आप देखें कि हवा का रुख किस तरफ होता है, समंदर की तरफ होता है, समंदर के अपोजिट होता है, अपोजिट होता है, समंदर की तरफ नहीं होता, क्योंकि बादल ने जाना है उस तरफ दूसरी साइड, तो अपोजिट होता है, सारे बादल तेजी से बन बन के उधर से जा रहे हैं। वहां जाके फिर बर्फबारी होती है, ग्लेशियर्स की बर्फबारी से फिर वो बर्फ पिघल के वो पानी चलता है, उसी पानी से नीचे भी पानी जेर जमीन भी चला जाता है, और जो है ऊपर भी पानी रहता है जिससे हम अपनी फसलें वगैरह सैराब करते हैं, और कुछ पानी समुद्रों में भी चला जाता है। तो सारा सारा जो मज़ाहिर हैं, हवा भी उसी हिसाब से चल रही, जो अल्लाह ने जिस चीज़ को जिस काम पे हमारे लिए लगा दिया। तो जब हम इस हम आहंगी को देखते हैं, क्योंकि दो होते फिर झगड़ा होता, वहां झगड़ा नहीं होता जहां दोनों आजिज हों, शरीफ आदमी हों, लेकिन अल्लाह जो है वो तो हर चीज पे कादिर है। अल मुतकब्बिर, तकब्बुर किस चीज से आता है? जब अख्तियार मिलता है। जैसे इमाम शाफी का कौल मिलता है ना, अगर कोई कहे ये शराब पी के बहका नहीं है तो मैं मान लूंगा, लेकिन अगर कोई साहिब इख्तियार है और उसमें वो बहका, वो कहे कि मैं बहका हुआ नहीं, क्योंकि इख्तियार के साथ क्या तकब्बुर आ जाता है, फिर तो चाल चला नहीं कुछ और हो जाता। तो मामला यह है, जब भी अब इख्तियार के साथ अब कुरान मजीद पढ़े, अल्लाह ताला किसने तहक्कुम के साथ बोलता है, अल मुतकब्बिर। अगर ऐसा एक और होता तो कितनी जंग होती है। तो ये इस चीज़ की दलील है कि तवाफुक है, ये जो हम आहंगी है आपस में,
जो सारे मज़ाहिर फितरत एक दूसरे के साथ मिल के चल रहे हैं, इसके अंदर ये सारे इशारा करते हैं कि अल्लाह की ज़ात कामिल है, वाहिद है। और ये जो उलुल अलबाब, होशमंद, लुब वाले, अकल वाले लोग, इनका जो गौर फिक्र का हासिल मार्फत रब होता है। और मार्फत रब में वो तीन चीज़ें तो बिल्कुल वाज़े तौर पे पता लग जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। एक ये कि वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, क्योंकि वो खुद ही महसूस हो जाता है। कायनात को हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी इंसान का मामला तो यह है कि मार्स पे उसने एक भेजा है, और पता नहीं इस जैसे कितने होंगे, और पता नहीं कब तक कहाँ इसकी वो है, कहाँ कायनात जाके ख़त्म होती है। तो इन सारी चीज़ों पे गौर करने से पता लगता है कि उसकी कुदरत बड़ी कामिल है। वो हर चीज़ पे इख्तियार रखता है, वो कुछ भी बना सकता है, और तमाम जो मखलूक है उसके ऊपर उसका इख्तियार चलता है। दूसरा ये कि वो बिकुल्ली शैइन अलीम है, हर चीज़ का इल्म रखता है। इल्म रखता है तो सारी चीज़ें अपने अपने जो उसने तय कर दिया उसके मुताबिक चलती हैं। जैसे ये सूरतुल मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता, अला यालमु मन खलक, क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने तख्लीक किया। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, वह हुआ लतीफ़ुल खबीर, कि वो बिल्कुल बारीक बीन और ख़बर रखने वाला, यानी छोटी से छोटी चीज़ की भी वो खबर रखता है। और तीसरी चीज़ ये कि वो हिकमत हकीम है, उसकी हिकमत भी कामिल है, यानी उसने कोई भी चीज़ जो पैदा की है उसमें हिकमत का एक पहलू है। आप देखें कोई छोटी सी चींटी, कोई छोटा सा ज़र्रा, अल्लामा इकबाल की इस हवाले से एक नज़म भी है जिसमें वो छोटी छोटी चीज़ों को कहते हैं कि ये भी हिकमत का हिस्सा है। ये और बात है, हमें अभी समझ नहीं आती। उस दिन मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे है वो, यूनिवर्स के हवाले से ना। तो वो जो चींटियां हैं ना, ये जो ट्रॉपिकल हमारे जंगल्स हैं, उनके अंदर चींटियां वो बता रहे थे क्या रोल अदा करती। वो किसी भी चीज़ को ना उसकी हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। वो जो जंगल होते हैं उसमें एक चीज़ एक हद तक रहे, वरना क्या होगा, फर्ज करें झाड़ियां हैं, वो दरख्तों के ऊपर भी गालिब आ जाएगी, एक स्पीशीज दूसरी पे चढ़ ना जाए। तो वो क्या करती हैं कि वो चींटियां वगैरह उसे बैलेंस में रखती हैं। जो चीज़ ज़्यादा बढ़ने लगती है उसको वो खाना शुरू हो जाती है, ऐसे ही उसको फंगस लग जाती है। तो सारी चीज़ें अपने बैलेंस में रहती हैं, तो फिर सारी चीज़ें परवान चढ़ती। कि अल्लाह की हिकमत भी कामिल है। फिर इसमें अगली आयत आएगी, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। वो लोग जो अल्लाह को याद रखते हैं खड़े हुए भी, बैठे हुए भी, अपने पहलुओं के बल लेटे हुए भी, और मज़ीद गौर व फिक्र करते हैं आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में। यानी ये लोग जब अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेते हैं, जब ये जान लेते हैं कि वो हर चीज़ पे कादिर ज़ात है, उसका इल्म भी कामिल है, उसकी हिकमत भी कामिल है, तो फिर यह है कि उसका तज़किरा करते हैं, उसको याद रखते हैं। ज़करा यज़कुरु का मानी क्या है? याद करना। अब उसके मुख्तलिफ जो है उसके तरीके हैं। सबसे बड़ा अज़िक्र तो है कुरान मजीद। कुरान मजीद की आप देखें, आप पढ़ना शुरू हों, कुरान मजीद का कोई सफ़ा आपको शायद मिले जहाँ जन्नत और जहन्नुम का जिक्र हो, ताकि असल मंजिल जो इंसान की है वो उसे याद रहे। इसी तरह कुरान मजीद जो हमारे जहनों में वसवसे पैदा होते हैं, यानी मैंने जब कुरान मजीद नहीं पढ़ा था, मेरे जहन में ये था अल्लाह ने हमें क्यों तख्लीक की। वो तो मैंने सूरतुल मुल्क पढ़ी तो अल्लाह ने सीधा सीधा लिखा हुआ कि मैंने तो तुम्हें खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये तो तुम्हारा इम्तहान हो रहा है। फिर मैंने कहा यार हम अगर आ गए यहाँ, हमारा मकसद क्या है? तो अल्लाह ताला मकसद भी बयान करता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि नहीं मैंने पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर अपनी इबादत के लिए। इबादत का ज़रा बड़ा मफहूम ध्यान में रखें, वो मैंने पिछली दफ़ा बताया
इबादत क्या होती है? 24 घंटे अल्लाह की बंदगी और उसकी गुलामी। इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात भी इबादत है, लेकिन सिर्फ ये इबादत नहीं। इबादत यह है कि चलते हुए आपने देखा कि ये चीज़ नुकसानदेह, किसी को ठोकर लग जाएगी, आपने हटा दी, ये इबादत की आप दुकान पे बैठे हुए थे, आपने सही तोला, ये इबादत किया आप घर गए, आपने बीवी से अच्छी तरह बात की, जैसे फरमाया कि मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा। हम क्या कहते हैं जी, रन मुरीद बन बेसी तो फलाना बन बेसी। हमें देखना है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और उससे स्टैंडर्ड बनाने। ये जो स्टैंडर्ड आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं? हिंदुआना माशरे। तो हिंदुआना माशरे के जो रस्म रिवाज हैं, उनके जो स्टैंडर्ड हैं, उन्हें छोड़ना है और आना है हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। इसी बात पे आज का जो है दर्स हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इन बातों को समझने और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।